Assalamu alaikum students. So in our previous class we were discussing about the exposures and we were particularly talking about the translation and economic exposure. Let's review previous lecture and then we will move on towards the next topic of the most important, I guess, the topic of international finance, where we discuss about the direct foreign investment. So first of all, with our reference to our previous lecture, economic exposure through empirical analysis with significant slope coefficients were discussed, where we discussed that if in case your future incomes are exposed towards any type of changes due to the change in exchange rate movement, so that means that your company is facing the economic exposure. Since we discussed the transaction exposure in a way where we discussed the transaction exposure में cash inflows and cash outflows, they are affected by the exchange rate movement, so you call it transaction exposure. However, when you are talking about the economic exposure, so basically your future income or the present value of the future income is exposed towards the changes due to any change in exchange rate movements. So when you are talking about the economic exposure, so that can also be examined through the empirical analysis, and as we discussed it so many times in our previous lectures, that for a multinational company the most important factor is that first of all you should identify that whether your company is exposed towards any type of exposure or not. So when you are talking about the economic exposure, first of all you should know the degree or the extent to which your company is exposed toward economic exposure, and once the international business or multinational company identify the degree of their exposure, then they would be able to identify how they can eliminate this type of exposure. So आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, जब आपको ये पता लग जाए कि वो किस एक्सटेंट पे है या आप कितना एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि आपने उसको एलिमिनेट किस तरह से करना है. एनालाइज करने के लिए empirical analysis, as we have discussed, first thing that in empirical analysis what you need to do is that you should know that it is the analysis where the model, the regression model is run, and in regression model basically you are trying to identify the dependence of one variable over the other variables. Say for example, when you are talking about the economic exposure, so what we can do is that we can regress the future incomes of the multinational company over the changes of the exchange rate movement. So for example, we had discussed कि आपके equation के left hand side पे dependent variable आएगा which will represent कि आपके पास future cash flows जो हैं या फिर जो parent company के जो cash flows हैं वो कितना depend कर रहे हैं over the exchange rate movements जो कि आपके right hand side पे हैं. So right side पे जो आपके exchange rate movements हैं उनकी वजह से अगर कोई भी change आपके future cash flows में आएगा, that will basically project that your company is facing the economic exposure. Empirical analysis is important because if you have different types of subsidiaries, say for example you have a parent company in Pakistan and you have 10 different subsidiaries in 10 different countries. So your economic exposure would be that you should know कि आपके फ्यूचर में आपके कितने चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो आपने डिफरेंट जगह पे सेट किया हुआ है. तो अगर आपकी फ्यूचर इनकम्स जो हैं किसी भी सब्सिडरी की या आपकी पेरेंट कंपनी की इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट वुड बी कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. स्लोप कोएफिशिएंट जो हमने बात की थी इसी पॉइंट में कि आपके सिग्निफिकेंट स्लोप कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, दैट वी डिस्कस्ड के जो आपकी रिग्रेशन जब आप रन करते हैं उस रिग्रेशन में यू हैव टू सी वेदर द स्लोप कोएफिशिएंट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर रिग्रेशन मॉडल, कि आपकी जो स्लोप जा रही है लाइन की जो रेट ऑफ चेंज डिफाइन कर रही है उसमें आपका स्लोप जो है उसमें कितनी वेरिएशन वो कितनी कैप्चर कर रही है, और दैट स्लोप बेसिकली डिफाइंस कि ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इम्पैक्ट लेके आ सकता है. और जो स्लोप कोएफिशिएंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्ट्रेट अवे स्लोप कोएफिशिएंट्स को देखें और डिफाइन कर दें कि जी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इतना इफेक्ट ला रहा है ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल. What you need to do is you need to consider the slope coefficient, their expected signs which we discussed in our previous class. कि उसके expected signs क्या हैं? Say for example, what type of relationship you are expecting between dependent variable and independent variables. If you are expecting a positive relationship between the two, so you must expect a positive sign with the slope coefficient. Plus, when we are talking about the significance, so that means you will check
whether the signs of the probability, okay fine, they are according to your expectations, but whether they are significant or not. और significance के लिए क्या हमने कल पढ़ा था, उसमें यही था कि आपने बेसिकली ये देखना है कि आपकी जो probability value आ रही है along with your slope coefficient, whether that is below 10% or not. अगर वो below 10% है, that means it is significant, and when it is significant, so basically what you can do is you can consider that particular slope coefficient as the significance value of the your change in the variables, कि आपके इस variable से या independent variable से dependent variable में इतने % change expected है. So that is the significance of the slope coefficients. We also discussed कि जब आपको ये पता चल जाए being a multinational companies कि आप इतना exposure face कर सकते हैं in future या फिर आप face कर रहे हैं, then what will be the next stage that you will decide first thing that what is the possibilities for hedging. One thing you should decide whether you should go for hedging or not, and second thing you should decide what type of options available, and then you have to choose one of them, or you can take the mix also. In case of transaction exposure, as we discussed, there are so many hedging possibilities where we were discussing that there is a possibility you can go for different type of futures, forward contracts, you can go for money market criterias, you can go for option contracts, swaps and parallel loans, and cross hedging. So many options were available over there. When you are discussing the economic exposure, where you are saying कि जो आपकी future incomes हैं वो exposed हैं due to any change in exchange rate movement, then what you need to do is you need to consider कि आप उसको किस तरह से eliminate कर सकते हैं या किस तरह से आप उसके against hedging कर सकते हैं. So the two most important things are, first thing, restructuring, because when you are talking about the economic exposure, in that case basically you are trying to see when you are talking about the economic exposure, so you are trying to see कि आपने इसको eliminate किस तरह से करना है. अब उसमें restructuring जो आ जाती है, restructuring is something when you are trying to relocate or you are taking your operations to some other location. अब उस केस में जब आप अपने तमाम operations को किसी दूसरे locations पर लेके जा रहे हैं, what you need to do is you need to consider कि fine, you are winding up your business from the current location and taking it to the other location, then you have to consider whether you will get benefit out of it or not. अगर तो आपको इससे कोई benefit available है, then fine, you can move on. But on the other hand, we discussed कि जो restructuring है इसमें दो most important factors available हैं. One thing that you should identify कि एक तो ये कि time consuming है. Second thing that you have to identify it will cost you a lot. क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स भी इनकर करनी पड़ेंगी. आपको अपना पूरा सेटअप उठा के किसी दूसरे कंट्री में लेके जाना है जहां इकोनॉमिक एक्सपोजर आप ना फेस करें. अगर तो आपको ये फील होता है दैट यू आर टू मच श्योर और 100% श्योर दैट येस यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर कंट्री, देन येस यू विल मूव ऑन. बट इफ ऑन द अदर हैंड यू फील कि आपको शायद वापस मूव करना पड़ जाए, इन दैट केस द कॉस्ट विल बी रियली हाई. So you have to consider, or you have to decide on the basis that you should see whether you can have your setup in another location with some profits or not. Restructuring से related, we also discussed that there can be some limitations attached to restructuring. First thing, in restructuring you can see that there is a possibility that due to different governmental control, it might not be possible for you to freely launch your business in another country the way you were doing it already in this particular country or in your own home country. Second thing, there is a possibility that you might not grab the other market in a better way, the way you were doing your business already here in the previous setup. Third thing, there is a possibility कि आप अपनी sales को इतना enhance ना कर सकें in नई market में due to increased competition. So बहुत सारी possibilities हैं कि जब आप अपनी restructuring सोचते हैं, अपना business दूसरी जगह किसी दूसरी location में launch करने के बारे में सोचते हैं, then you have to consider whether it would be feasible or not. फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हमने बात की थी कि अगर आपने अपना बिजनेस सारा का सारा रीस्ट्रक्चर करना है, देन यू हैव टू सी कि वेदर यू कैन यूज द फिक्स्ड एसेट hedging thing or not. One thing, how you would hedge fixed asset, first of all you should think whether you can hedge it or not. अगर आप hedging कर सकते हैं तो एक चीज तो ये कि क्योंकि आप किसी दूसरे कंट्री के सेटअप की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व हैं उसमें, सो एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब आप उन फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे और वापस
अपने कंट्री में वो अमाउंट लेके आना चाहेंगे, देन ऑब्वियसली वो अमाउंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के साथ एक्सपोज्ड होंगी, एंड देन यू हैव टू सी द एक्सचेंज रेट रिस्क. What the best option for fixed asset is that you need to see whether you can generate some liability along with those fixed asset in the other country wherever your setup is, so that when you are trying to wind up या आप जब fixed asset को sell करें so उतनी ही amount की liability जो आपने generate की हुई है उसको pay off कर दें और इसी तरह आप उसको utilize कर लें और hedge कर लें. So that is one thing by which you can hedge for your fixed assets, कि rather than waiting कि okay fine when you will be winding up your business you can use fixed asset, sell them and bring your money back to your home country. You have to think that in that case obviously you will be exposed towards the exchange rate movements, and in that case it is always favorable कि आप एक liability generate करें जो exactly same amounts की हो और फिर उसको आप fixed assets को sell करके liability pay off कर दें. We discussed the translation exposure. Now what is translation exposure? That we said if there is a parent company, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने बात की कि आप की एक पेरेंट कंपनी है जो कि यूके में काम कर रही है, यूके में काम करते हुए पेरेंट कंपनी के साथ 20 सब्सिडरीज इन्वॉल्व हैं जो कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में और डिफरेंट दूसरे कंट्रीज में, से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या किसी दूसरे कंट्रीज में काम कर रही हैं. व्हाट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर? के जब आप सारे की सारी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाएंगे, उन तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करेंगे इनटू वन जायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच विल बी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी. अब जो वो तमाम अमाउंट्स आपकी इंडिविजुअल सब्सिडरीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रही हैं वो कंसोलिडेट हो जाएंगी इनटू अ मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ द करेंसी यूनिट वेयर योर पेरेंट कंपनी इज हैविंग देयर सेटअप. तो आपकी जितनी की तमाम 20 की 20 जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं वो लोकल करेंसीज में होंगी उनमें जिन कंट्रीज में ये सब्सिडरीज काम कर रही हैं. हाउएवर यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो पेरेंट कंपनी के में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे देन यू हैव टू मूव ऑल द वैल्यूज इनटू द पेरेंट कंपनीज जो आपकी करेंसी यूज कर रही है. अब जब आप तमाम की तमाम 20 को कन्वर्ट करेंगे इनटू वन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनटू वन यूनिट ऑफ करेंसी, उस टाइम पर जब आपके कन्वर्जन के ऊपर या फिर ट्रांसलेट करते वक्त कोई एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की वजह से कोई रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेशन एक्सपोजर. कि आप एक पेरेंट कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं जिसके फर्दर 20 सब्सिडरीज इन्वॉल्व हैं, उन तमाम सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोकल करेंसीज में है. जब आप उसको फर्दर मूव करेंगे इनटू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते वक्त जब आप एक मेन करेंसी में लेके आएंगे जो कि आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है, इस ट्रांसलेशन के दरमियान अगर कोई एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से एक्सपोजर आता है, सो दैट मीन्स दैट योर कंपनी इज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स ट्रांसलेशन एक्सपोजर. We also discussed that there are possibilities when you identify कि yes your company is basically facing the translation exposure, then you decide कि if you have decided कि yes translation exposure तो है जो आपकी कंपनी फेस कर रही है, then you have to see to what extent your company will face translation exposure. आपकी 20 सब्सिडरीज हैं तो कितनी सब्सिडरीज में से पॉसिबिलिटी है कि आप being a parent company you will face translation exposure. So in that case basically you have to see कि आपका translation exposure कितना है. जब आप उसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लें ड्यू टू डिफरेंट एनालिसिस और बाय यूजिंग डिफरेंट एम्पिरिकल मेथड्स, देन यू कैन डिसाइड हाउ यू कैन हेज इट. अब वो हेजिंग किस तरह से हो सकती है ट्रांसलेशन एक्सपोजर? दैट यू कैन बेसिकली गो फॉर द फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. सो यू कैन ईदर बाय और सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और बाय और सेल पाउंड्स, या आप कह लें जिसमें भी आपकी रिसीट्स आनी है या पेमेंट्स होनी है उस करेंसी में आप बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और उसके थ्रू आप हेजिंग कर लें. Then we also discussed the issues related to hedging criteria in terms of translation exposure. Since we are talking कि आप एक consolidated financial statement में तमाम amounts को convert करेंगे जहाँ के पेरेंट कंपनी इन्वॉल्व है, बट आपकी 20 सब्सिडरीज की जब हम बात करें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो सब्सिडरीज हैं वो किसी छोटे कंट्रीज में हो या किसी ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज में हो जिनकी करेंसीज इतनी डेवलप नहीं है कि उनमें फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हों.
सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सी कि आपका जो एक्सपोजर आ रहा है वो किन कंट्रीज या किन करेंसीज में आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो कंट्रीज ऐसे हैं जो फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं करते, देन ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि आप उसकी हेजिंग किस तरह से कर सकते हैं. Finally, there is also possibility we discussed कि आप या तो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कर लें, और देन यू कैन सी कि आपने अगर 20 सब्सिडरीज इन्वॉल्व की हैं, 20 डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि आपने अगर किसी एक का जो लॉस हो रहा है, किसी एक कंट्री से जो आपका लॉस हो रहा है, मे बी वो किसी दूसरे कंट्री की करेंसी से वो डिफ्रेंशिएट हो जाए या सॉरी ख़त्म हो जाए उससे, बिकॉज एक का लॉस जहाँ से आ रहा है किसी दूसरे कंट्री से मे बी ज़्यादा बेनिफिट आ रहा हो और वो उसको सेट ऑफ कर दे, ऑफसेट कर दे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सी कि आपके पास करेंसीज कौन कौन सी हैं, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन कितनी की हुई है, किसी एक कंट्री का लॉस किसी दूसरे कंट्री के बेनिफिट से ऑफसेट हो सकता है या नहीं हो सकता. इन दैट केस यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन विल वर्क और नॉट. सो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर, सो देयर इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर. एंड फर्स्ट थिंग दैट यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोजर टू व्हिच योर organization is facing these type of crises or these types of risks. Finally, when you have identified by using different empirical methods, you have to see how you can hedge or whether you have to hedge or not. Once you say that yes, your company will go for the hedging thing, then you have to see how much hedging is possible and what are the methods available for the hedging, and then you can move on with the selection of the hedging method, and you can hedge against any type of risk which your multinational company can face in future due to the exchange rate movements. तो अब तक तो हमने बात की तमाम के तमाम एक्सपोजर्स की, इंटरनेशनल बिजनेस की, कि आप किस तरह से उसको फेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह के रिस्क्स को फेस कर सकते हैं, एंड देन आप उनके साथ किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर उनको हेज कर सकते हैं. टुडेज टॉपिक फॉर आवर लेक्चर वुड बी रिगार्डिंग the direct foreign investment, which is I guess we have discussed it briefly in our previous earlier lectures where we discussed what is direct foreign investment, but today we will consider it in detail, that what are the objectives or motives of your direct foreign investment in different economies. To describe the common motives for initiating direct foreign investment, कि direct foreign investment start क्यों की जाती है या different economies में क्यों हम motivate होते हैं to set up their direct foreign investment. Secondly, to illustrate the benefits of the international diversification, कि अगर आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन परस्यू विद दिस क्राइटेरिया कि आपको डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. So first of all, we should focus that what are the motives for multinational companies to start their setup into a different economy या फिर किसी दूसरे country में DFIs का क्या objective हो सकता है आपकी investment का. One thing, what are DFIs? We had discussed it that when you are trying to have your setup in another economy in a way where you can acquire a business, merge a business, so that was called the DFI. अब multinational companies क्यों consider करते हैं to start up their business into different economies या किसी दूसरे कंट्री में, उसके मोटिव्स क्या हो सकते हैं या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल one by one. So multinational companies commonly consider DFI because it can improve their profitability and enhance shareholders wealth. जो हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था मल्टीनेशनल कंपनीज का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव टू सेट अप देयर बिजनेस, तो उसमें यही था, वन थिंग दे वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड थिंग that they want to increase the shareholders wealth. Now who are the shareholders? Shareholders are the people who are basically owner of the organization. Just recall that lesson and you will see कि हमने shareholders को किस तरह से define किया था और DFIs को किस तरह से define किया था, कि आप basically profitability को increase करना चाह रहे हैं through DFIs, क्योंकि that is the main objective कि आपकी organization की जो profits हैं वो increase हो जाएं, जो आपके revenues हैं वो increase हो जाएं, plus you also want to enhance
enhance the shareholders wealth which is your main objective, because shareholders की wealth किस तरह से increase होगी, जब आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तो ऑब्वियसली डिविडेंड्स इंक्रीज होंगे ऑन शेयर्स, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी. सो DFIs जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे कंट्री में, सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन एक्सपैंड ऑन विद योर बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है, रेवेन्यूज को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी थ्रू द डिविडेंड्स, बिकॉज अब आप ज्यादा डिविडेंड्स ऑफर करेंगे. In most cases, MNCs engage in DFIs because they are interested in boosting revenues, reducing costs, or both. So जो mostly DFIs को setup किया जाता है in different countries. Why? Because the objective of the multinational company is to increase the revenues, जो आपके returns हैं, और to decrease the costs. तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पर आपका सेटअप इंस्टॉल करने से या फिर आपका सेटअप स्टार्ट करने से आपको लो कॉस्ट पे हायर रिटर्न्स मिले, सो ऑब्वियसली दैट इज फेवरेबल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी एंड दे वुड प्रेफर टू गो फॉर दैट. तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव, वन थिंग दैट दे वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, दे वांट टू इंक्रीज, मल्टीनेशनल कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. सेकेंडली, दे कैन बूस्ट द रेवेन्यूज एंड दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट्स ऑल्सो. सो दे आर ऑल इन्वॉल्व इन दैट क्राइटेरिया कि जब आपने DFIs को किसी दूसरे कंट्री में सेटअप करना है, सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट, बिकॉज यू वांट टू एंगेज इन अ वे वेयर यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स एंड वेयर यू वांट टू डिक्रीज द कॉस्ट, वेदर यू वांट टू हैव योर सेटअप ऑफ DFI in other country or not, but wherever DFI is involved, you have to see कि you basically you are trying to increase your revenues and you are trying to reduce your costs. Now revenue related motives क्या हो सकते हैं when we are saying कि revenues increase करने, so further revenue related motives for direct foreign investment क्या involvement हो सकती है. One thing that they can attract new sources of demand. तो आप जब किसी कोई नया सेटअप रखेंगे या कोई नया सेटअप स्टार्ट करेंगे, इन दैट केस आप ट्राई कर रहे हैं टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड, कि नई एरिया से या नए सेटअप में जाने से आपकी डिमांड्स इंक्रीज हो जाएंगी आपके प्रोडक्ट की. फॉर व्हाट यू कैन डू इज, फॉर द मीन्स ऑफ अचीविंग बेनिफिट, यू कैन एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी और एक्वायर अ कंपेटिटर इन अ न्यू मार्केट. अब आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है या मोटिव क्या है, दैट यू वांट टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड. आपने मैच्योर कर ली मार्केट इन योर प्लेस वेयर यू वर डूइंग योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस. व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू अट्रैक्ट न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड, कि अब आप किसी नए सोर्सेज ऑफ डिमांड की रिक्वेस्ट या फिर डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास फर्दर डिमांड आए ऑफ न्यू सोर्सेज. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक नई सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि एक नया सब्सिडरी का सेटअप एस्टैब्लिश कर लें इनटू अ न्यू मार्केट टू बेसिकली अट्रैक्ट न्यू डिमांड sources. Secondly, what you can do is that you can acquire an already competitor business in a competitor market. तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप acquisition करेंगे तो basically आप penetrate कर रहे हैं into a new market, और उस new market में आप penetration के साथ basically try कर रहे हैं, grab करने की कोशिश कर रहे हैं competitors market को. So first thing तो ये कि जो आपकी already existing demands है, setup है, you are moving one step ahead from that and you are trying to attract new sources of demand by having or by establishing a new subsidiary और या फिर by acquiring an existing business. तो अगर आप कोई नया बिजनेस एक्वायर कर लेंगे या फिर एक नई सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर लेंगे इनटू अ मार्केट, कंपेटिटिव मार्केट, ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू ग्रैब दी सोर्सेज ऑफ डिमांड, जो दूसरे सोर्सेज ऑफ डिमांड है आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. सेकंड, यू कैन एंटर, आपका मोटिव क्या हो सकता है, टू एंटर प्रॉफिटेबल मार्केट्स. अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है या फिर ये आपका मोटिव है कि यू वांट टू एंटर अ प्रॉफिटेबल मार्केट. अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल मार्केट जो है आप उसमें एंटर होना चाह रहे हैं, सो यू कैन एक्वायर अ कंपेटिटर दैट हैज कंट्रोल्ड इट्स लोकल मार्केट. तो अब अगर आपने प्रॉफिटेबल मार्केट में एंटर होना है और आपको कोई एक्विजिशन की पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस मार्केट में, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्वायर अ कंपेटिटर that has controlled its local market, जिसने already local market को grab किया हुआ है, you can acquire that. So उस केस में बेसिकली क्या होगा कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल मार्केट में एंटर हो जाएंगे और आप किसी कंपेटिटर की अगर एक्विजिशन अवेलेबल है
So you can just acquire that and move on with the business, and then you can grab the profits from that market. एक्सप्लॉयट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो मोनोपोली, अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो मोनोपोली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट में, मोनोपोली को हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी लीड करते हैं, जो प्रोडक्ट्स जिनके कंपेटिटर्स अवेलेबल नहीं होते और उनकी मार्केट में मोनोपोली होती है कि उनके अगेंस्ट कंपटीशन नहीं अवेलेबल होता. सो दैट इज द मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज. सो एक्सप्लॉयट द मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज. अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट वेयर कंपेटिटर्स आर unable to produce the identical product. तो जिस तरह मैंने बोला कि आपके मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स या मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज क्या होगा कि आप किसी ऐसी मार्केट में एंटर हो रहे हैं जहां पे कंपेटिटर्स या तो अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर अवेलेबल हैं तो वो आपके स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट या उसी टाइप का प्रोडक्ट जो है दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस इट. सो ऑब्वियसली ऐसी मार्केट में तो बेनिफिट का बहुत ज्यादा चांस है, प्रॉफिट्स की बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इन दैट केस यू कैन अचीव ह्यूज प्रॉफिट्स. सेकेंडली, बाय एस्टैब्लिशिंग अ सब्सिडरी इन अ मार्केट वेयर competitors are either unable to produce the identical product or they are completely unable to compete with your product. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पे आता है वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहां पे आप अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इन दैट केस यू वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि DFI को वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया जाए, बिकॉज इन दैट केस यू विल अचीव हायर प्रॉफिट्स. रिएक्ट टू ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. Establish a subsidiary in a market where trade restriction will adversely affect the export volume. So आपके बेसिकली आप जब रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, so usually governments prefer to eliminate or basically try to reduce the any hurdles which are basically faced by the international traders. So trade restrictions में आपकी governments आपको facilitate करती हैं, so you can improve on with the exports. अब आप अगर किसी नई मार्केट में कोई सब्सिडरी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वन थिंग दैट वेदर यू कैन एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट वेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन विल एडवर्सली इफेक्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम. सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस कंडीशन में भी रेवेन्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेड कंडीशंस, आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी इकोनॉमी में या किसी ऐसे कंट्री में अपना सब्सिडरी स्टैब्लिश करना चाहते हैं जहां पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं है, या फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट वॉल्यूम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, या आपकी जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप एक्सपोर्ट करके अपने रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं. Diversify internationally. Diversification के as we have discussed in detail in previous classes कि आपकी diversification is always in a favor for the international traders or for the international business. कि first of all you can establish subsidiaries in markets with different business cycles. कि अब हो सकता है आपने जहां पर अपनी सब्सिडरीज एस्टैब्लिश की हुई हैं वहां पे ऑब्वियसली बिजनेस साइकिल किसी एक ही नेचर का है कि बूम्स आते हैं और फिर आपके रिसेशन फेज भी आता है, लेकिन दैट वर्क्स विद द सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म. हाउएवर इफ यू आर डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफरेंट मार्केट्स, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो बिजनेस साइकिल हैं वो भी डिफरेंट हो, and in that case due to that diversification there is a possibility that you will get benefit out of it. तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू जब आप DFI अपना एस्टैब्लिश करेंगे इनटू एनी अदर इकोनॉमी इन एनी अदर कंट्री, व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल एस्टैब्लिश सब्सिडरीज बाय अचीविंग द बेनिफिट ऑफ योर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, एंड इन दैट वे ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स आप फेस करेंगे, और अगर किसी एक बिजनेस साइकिल से आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो किसी दूसरे से प्रॉफिट होने का चांस है. तो जितने डाइवर्सिफाई करेंगे आप अपने DFIs को, उतनी ही पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हायर प्रॉफिट्स अचीव कर सकते हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर कैन बी डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो तमाम मोटिव्स में फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज के DFIs आप क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं या आप क्यों DFIs को फोकस करते हैं बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, दैट फर्स्ट थिंग यू वांट टू अट्रैक्ट द न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड, क्योंकि आप किसी नई मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो डिमांड के सोर्सेज हैं दे विल चेंज. सेकेंड थिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर ट्राइंग टू ग्रैब द प्रॉफिटेबल मार्केट जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसी मार्केट्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में जहां पे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने के चांस है. सो यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स ओवर देयर. तो या तो आप एक्विजिशन कर लें और या फिर आप वहां पर अपनी कोई सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर लें.
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यू कैन कंसिडर कि आप अपना सेटअप लेके किसी दूसरे कंट्री में अपना मोनोपोली लेना चाहते हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ग्रैब करना चाहते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन competitors are unable to basically produce the same type of the product or they are unable to produce that quality which you are producing. तो आपकी मोनोपोली है उस मार्केट में. सो अगर तो आप मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ग्रैब कर लेते हैं, सो देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपके प्रॉफिट्स बहुत हायर होंगे. Trade restrictions, you can see those economies where there are less trade restrictions regarding your product and then you can move on with that. So in that case obviously अगर आप किसी ऐसी economies में जा रहे हैं, so there is a possibility that future में आपके पास profits भी ज़्यादा होंगे. इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या है कि जब आप अपना सेटअप लगाएंगे किसी दूसरे कंट्री में या एस्टैब्लिश करेंगे एक नया सब्सिडरी, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स की वजह से यू विल हैव द डाइवर्सिटी. Second thing, that due to the international diversification, obviously you will be dealing into different types of currencies. So जब आप किसी एक से profit नहीं होगा तो आपका obviously किसी दूसरे से benefit होने का chance है और आपका वो जो loss है वो offset हो जाएगा due to the profit from the other setup. Till now we have discussed the motives regarding the revenues. Now we will discuss the motives regarding the cost related to the DFIs. कि आप DFIs जब लगाते हैं, establish करते हैं, so what are the main objective? जिस तरह revenues के बारे में हमने बात किया कि आपका main objective ये है कि आप revenues को enhance करना चाहते हैं, increase करना चाहते हैं. Same goes with the costs, that when you are talking about the costs, so you are trying to reduce the costs. तो जब रेवेन्यूज की बात आएगी तो आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जब कॉस्ट्स की बात आएगी सो यू बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट. सो व्हेन यू आर टेकिंग द मोटिव्स, इसमें मोटिव्स क्या हो सकते हैं कि आप कॉस्ट्स को रिड्यूस करने के लिए आपका क्या मोटिव्स अवेलेबल हैं, दैट यू वांट टू फुली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएं उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है. सो आप बेसिकली जब कॉस्ट से बात करेंगे तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या जितना ज्यादा सेटअप एस्टैब्लिश करेंगे, इन डिफरेंट सब्सिडरीज एस्टैब्लिश करेंगे, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेंगे और उस केस में आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग बेनिफिट्स व्हेन यू आर टॉकिंग दिस मोटिव कि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू आप किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि establish a subsidiary in a new market where products produced elsewhere can be sold. This allows for increased production and greater production efficiency. So obviously जब आपने economies of scales को introduce करना है, so you can establish a new subsidiary in a market जहां पे आपके products जो produce हो रहे हैं can be sold anywhere. Plus this allows for increased production and greater production efficiency. तो obviously अगर तो आप किसी ऐसी जगह सेटअप लगा रहे हैं जहां से आपकी सेलिंग किसी कहीं पे भी हो सकती है in all over the world. So obviously एक डिमांड आ रही है और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, in that case economies of scale अचीव कर रहे हैं and your efficiency can be enhanced. Second objective या motive क्या है कि use of foreign factors of production. As we discussed in our earlier lectures कि जब आप DFIs की बात करते हैं तो आप foreign factors of production को क्यों यूज करते हैं, because हमने बात की थी कि जो factors of production है वो immobile होते हैं. So आपको अगर कुछ प्रोडक्शन करनी है और आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि बाहर के इकोनॉमीज में या किसी दूसरे कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में उनकी अवेलेबिलिटी चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है. सो ऑब्वियसली यू शुड प्रेफर टू गो फॉर दोज इकोनॉमीज एंड यूज देयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड देन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो इन दैट केस वन ऑब्जेक्टिव के कॉस्ट को भी आपने रिड्यूस करना है तो आपके पास ऑब्वियसली अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो आपके इतने ज्यादा उस तरह से ऑब्वियसली मोबाइल नहीं है. सो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि बाकी इकोनॉमीज में अवेलेबल हैं और आप चीप कॉस्ट के साथ बाकी इकोनॉमीज में काम कर सकते हैं, तो जितना सेटअप आप बाकी इकोनॉमीज में एस्टैब्लिश करेंगे उतना बेनिफिट आपको पॉसिबल है कि आप अचीव करें. So in this case what you can do is that you can establish a subsidiary in a market that has lower costs of labor or land and sell the products elsewhere. तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में या इंग्लैंड में क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत हाई हैं,
यूजुअली जो उनकी पर आवर लेबर कॉस्ट चार्ज होती है कि आपको पर आवर लेबर्स को अमाउंट्स पे करने या वेजेस पे करनी है. हाउएवर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान इकोनॉमी, तो अगर पाकिस्तान में आपने प्रोडक्शन करनी है और लेबर को यूज करना है तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर वेजेस इंट्रोड्यूस होती हैं, या किसी भी लेबर की जो वेज है वो डेली बेसिस पे होती है, और वो भी बहुत नॉमिनल है, विच यू कैन नॉट मैच इट विद द लेबर वेजेस ऑफ द इंग्लैंड और अमेरिका. तो अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों की वेजेस में बहुत डिफरेंस है. सो इन दैट केस ऑब्वियसली यूज ऑफ फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस कि अगर इंग्लैंड अपनी किसी कंपनी का सेटअप फॉर एग्जांपल सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर देता है इन पाकिस्तान, तो चीप लेबर कॉस्ट के साथ वो वही प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, जो कि क्वालिटी वो अपने इंग्लैंड में यूज कर रहे हैं. बट द डिफरेंस वुड बी कि आपके इंग्लैंड में क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है. हाउएवर इफ दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, देन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो होगी, और इन दैट केस दे कैन गेट द बेनिफिट बिकॉज व्हाट इज द मोटिव? द मोटिव इज दैट दे वांट टू यूज द फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग देम और एस्टैब्लिशिंग अ न्यू सब्सिडरी. देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट्स. नाउ यूज फॉरेन रॉ मटेरियल्स, जिस तरह हमने बात की कि आप लेबर को यूज करें और चीप लेबर्स को यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करें, और इन दैट केस यू विल गेट मोर बेनिफिट. नाउ इन दिस केस यूज ऑफ फॉरेन रॉ मटेरियल्स, सो एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन अ मार्केट वेयर रॉ मटेरियल्स आर चीप एंड एक्सेसिबल. तो जिस तरह हमने लेबर की बात की कि आप चीप लेबर मार्केट्स में जाएं जहां पे लेबर चीपली अवेलेबल है, गेट द लेबर फ्रॉम देयर एंड देन डिसाइड वेदर यू हैव टू यूज इट और नॉट. एंड अगर आपको चीप लेबर के साथ आप ऑब्वियसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी. सेम गोज विद द फॉरेन रॉ मटेरियल्स कि जिस तरह आप लेबर को यूज कर सकते हैं, इसी तरह चीप रॉ मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं. जिस कंट्री में किसी भी रॉ मटेरियल की एक्सेस होगी, ऑब्वियसली वहां पे प्राइसेस लो होंगी. एंड इफ योर प्रोडक्ट इज ऑफ द नेचर जहां पे आपको रॉ मटेरियल उस टाइप का चाहिए, व्हाट यू कैन डू इज रादर देन बाइंग इट इन योर डोमेस्टिक सेटअप, यू कैन यूज द फॉरेन मार्केट्स फॉर cheap materials. So establish a subsidiary in a market where raw materials are cheap and accessible. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप ऐसी मार्केट्स में जाके ग्रैब कर सकते हैं जहां पे रॉ मटेरियल्स चीप है, और आप वहां से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं. सो दैट कैन बी अनदर ऑब्जेक्टिव फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू सेल द प्रोडक्ट्स इन दैट मार्केट एंड elsewhere. So basically what you are trying to do is that you are trying to establish a market or establish a subsidiary in a market where either the costs are low, either the labor is low, labor wages are low, or you are trying to get the benefit out of economies of scale. So these are some motives by which the DFIs are set up, having their setup in different economies. Either they are trying to increase the revenues due to by using different factors, or they are trying to reduce their costs. So we will discuss these points further in detail with examples, so you should be more clear. But let's finish the cost related motives. Now what can be the other motive? You can use the foreign technology, कि अभी तक आपने बात की कि या तो आप फॉरेन लेबर यूज कर लें जो कि चीप रेट्स पे या चीप वेजेस पे अवेलेबल है. सेकेंडली वेदर यू कैन गो फॉर द चीप रॉ मटेरियल्स, कि आप रॉ मटेरियल्स यूज कर लें जो बाकी इकोनॉमीज में अवेलेबल हैं, और आप रादर देन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन योर डोमेस्टिक कंट्री, या फिर एक्सपैंडिंग योर यूनिट्स इनटू अदर कंट्रीज और अदर एरियाज ऑफ सब्सिडरीज, कि वहां पे आप एस्टैब्लिश करें अपनी सब्सिडरीज और वहां से बेनिफिट अचीव कर लें. नाउ द अदर मोटिव इज दैट यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो आपकी कंट्री में उस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में जो है वो उसकी कॉस्ट इतनी हायर नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन यूज द फॉरेन टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट वेंचर और एक्वायर एन एग्जिस्टिंग ओवरसीज प्लांट टू लर्न अबाउट फॉरेन प्रोडक्शन प्रोसेसेस सो एज टू इंप्रूव इट्स ओन ऑपरेशंस. अब अगर आपको ये लगता है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इतनी एडवांस्ड नहीं है, एंड यू वांट टू लर्न द मेथड्स और द वेज बाय विच यू कैन गेट मोर एंड मोर बेनिफिट ड्यू टू द यूज ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सेटअप को एक्वायर कर लें, एंड देन यू कैन डिसाइड और यू कैन सी कि आप किस तरह से फॉरेन प्रैक्टिसेस को या एडवांस टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स योर ओन बिजनेस. कि अगर आपने फॉरेन टेक्नोलॉजी को लर्न करना है एंड देन यू हैव टू यूज द सेम वेज और सेम टेक्नोलॉजी इन योर ओन बिजनेस, देन यू हैव टू लर्न इट ओवर देयर इन फॉरेन सेटअप.
तो बेसिकली कॉस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं दैट कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट्स. So obviously in that case when you participate in a joint venture or you can acquire an existing plant in overseas, so your objective is to learn from the advanced technologies or to basically introduce the advanced technology in the production of your products, and then you are trying to improve on with your efficiency and operation, and you are trying to get the reduced costs also. So that can be another motive for your direct foreign investment in any other country or in any other plant. React to exchange rate movements can be another motive कि जब आप costs को reduce करना चाहते हैं, so you want to also react to the exchange rate movements. So आपके पास basically you can establish a subsidiary in a new market where the local currency is weak but is expected to strengthen over time. So अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेटअप से निकलकर एक और सब्सिडरी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इनटू अ मार्केट, एंड द ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड या मोटिव इन योर माइंड इज कि आप डीएफआई सेटअप करना चाह रहे हैं या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट यू वांट टू रिएक्ट टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट. सो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू इज दैट you can establish a subsidiary into a new market where their domestic currency is weak at the moment and it is expected to strengthen in a future time या over time. So उसमें क्या होगा कि आप cheap prices के ऊपर वहाँ install कर देंगे अपना setup या establish कर देंगे अपना setup, and then over time आपके obviously क्योंकि उनकी currency weak है जहाँ आप setup establish कर रहे हैं, over time जब आप वहाँ पे अपना business run करेंगे और उनकी currency strengthen होती है, that will give you benefit and costs जो है वो reduce हो जाएंगी. So these are some motives regarding the cost related objectives of the DFIs, and we will discuss them in detail in our next lecture. So let's review today's lecture, students. So let's review today's lecture. First of all, we discussed that why or what are the common motives for initiating direct foreign investment in another country or in another setup. Direct foreign investment हमने बात की थी in our previous lecture कि direct foreign investment क्या है, कि उसमें आप basically ये देखते हैं कि आप किसी दूसरे setup किसी दूसरे country में जाके for example कोई acquisition कर सकते हैं या नई subsidiary launch कर सकते हैं. That is called direct foreign investment. So what can be the motives? The main two motives are, first thing that you want to reduce the cost and second thing you want to increase the revenues. अब revenues increase करने के लिए आप क्या motives हो सकते हैं या फिर revenues को increase करने के लिए आप क्या objectives use कर सकते हैं और उसके लिए आप further क्या actions ले सकते हैं. Second thing we have discussed कि आपको costs को reduce करना है by the introduction of direct foreign investment, and आप वो उसको introduce करके किस तरह से वो objective achieve कर सकते हैं. So the common motives for introducing the direct foreign investments are for revenues. First of thing that you can attract new sources of demand. So already आपने एक market attract कर ली है या एक market mature कर ली है. Now you are trying to attract more sources of demand for the same product or for your own product. What you can do is you can go for the direct foreign investment, एक subsidiary introduce करा दें, establish कर दें into a new market, and then you can move on with that. Second thing what you can do is कि आपने क्योंकि न्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड सोर्सेज जो हैं उनको आप चेंज करना चाह रहे हैं बिकॉज ये तो आपने मार्केट मैच्योर कर ली है. नाउ यू वांट टू मूव ऑन इनटू अनदर मार्केट सो दैट डिमांड सोर्सेज कैन बी चेंज और कैन न्यू डिमांड सोर्सेज कैन बी इंट्रोड्यूस. सो इन दैट केस ऑब्वियसली यू कैन अट्रैक्ट मोर सोर्सेज ऑफ डिमांड कि आप किसी नई जगह पे या किसी नई उसमें एक नई सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं नई कंट्री में और उसकी बेसिस पे आप अपने डिमांड सोर्सेज को चेंज कर रहे हैं और नए डिमांड सोर्सेज introduce करा रहे हैं. In that way you are getting the profits. Second thing, you can enter into profitable markets. तो आपके ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग सेटअप है उससे निकलकर आप किसी प्रॉफिटेबल मार्केट में एंटर होना चाहते हैं. यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ डीएफआई इनटू अ मार्केट वेयर देयर आर मोर प्रॉफिट्स अवेलेबल और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि आप उसमें फर्दर फ्यूचर में प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें. So in that case, the introduction of new subsidiaries into a market where you can basically grab the market in a way where you can generate more and more profit is also one more objective from your point.
of you. Third thing, you can exploit the monopolistic advantage, and when we are talking about the monopolistic competition or monopolistic advantage, so this is somewhere where your competitors are unable to produce the product of your type, plus or whether there is no competition available into the market, so you are going to have the monopoly over the market. In that case, obviously you have the benefit that if you are establishing a new subsidiary into a market where there is a benefit for you for having the monopolistic competition, then you can go for the opportunity कि आप उस opportunity को avail करें और future में further profits generate कर सकते हैं और revenues को increase कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपका जो product है that is having the benefit of or the advantage of monopolistic competition, कि आपकी monopoly है उस market में और कोई और competitor available नहीं है, या फिर अगर competitors available है तो उनका जो product है वो इस nature का है या इस quality का है कि वो आपके साथ compete नहीं कर सकते और आपके product की monopoly है into the market. So what you can do is you can establish a new subsidiary into a market where you think there are chances for the same monopolistic advantage, and you can go move on with the DFI so that to introduce the revenues. क्योंकि आपने एक market तो mature कर लिया, अब दूसरी market में now you want to introduce your product with the same criteria, with the same objectives or motives, कि आप basically you are trying to grab the monopolistic advantage. Third thing, which is diversification internationally, we have already discussed that diversification is always in the favor of international business. Why? Because you are trying to introduce yourself into different countries, and if from one country or one currency you cannot get the benefit, you can get the benefit from the other country or currency. So अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सेटअप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इनटू अनदर कंट्री या फिर इनटू अनदर मार्केट, तो आप बेसिकली डीएफआई को एस्टैब्लिश कर देंगे या फिर एक सब्सिडरी को एस्टैब्लिश कर देंगे या कोई एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लेंगे. इन दैट केस व्हाट विल हैपन दैट यू आर ट्राइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिफिकेशन. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल लॉन्च योर सब्सिडरी इनटू अ न्यू मार्केट और इनटू अ न्यू कंट्री, ऑब्वियसली जो उसके रेवेन्यूज आएंगे दे विल बी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर करेंसी, क्योंकि आपने किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने एक नया सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर दिया इनटू अ न्यू मार्केट. सो इन दैट केस आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आ गया, व्हिच विल बेसिकली ऑफसेट दी लॉसेस फॉर योर बिजनेस कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री और एनी अदर करेंसी. तो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज इन द फेवर वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द DFIs or a setup or establishment of a new DFI. Now the second thing is which is related to costs, कि आपने first objective था कि आप basically revenues को promote करना चाह रहे हैं, increase करना चाह रहे हैं. Second objective is that you want to reduce the costs. तो costs को reduce करने के लिए one thing that you can get the benefit of full economies, fully benefit from the economies of scale, कि आप किसी ऐसे country में जाके setup लगाएं जहां आपके ऊपर कोई barriers नहीं है, कोई restriction नहीं है, and you can get the production in that setup and then you can sell it elsewhere, anywhere you want. So obviously you will try to get the benefit of economies of scale, क्योंकि अगर उस सेटअप में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, in that case you will get more and more revenues due to the increased production and you will get the reduced cost due to the economies of scale, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी उतनी कॉस्ट रिड्यूस होती चली जाएंगी. So to get the benefit or fully benefit from economies of scale, what you can do is you can go for getting the benefit from this way. Second thing, that you can use the foreign factors of production. As we said, the factors of production are immobile, so what you can do is you are launching or establishing your DFI or a subsidiary in another market or in another country because you want to get the benefit of the factors of production which are available in other economies. वो factors of production जो कि आपकी economy में available नहीं है, आप उनको use करना चाह रहे हैं in other economies, then you can have your setup into the other country or in other market by using that DFI. और आप उसको डिफरेंट फर्दर जब आप दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरे कंट्री में या दूसरी मार्केट के यूज करेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट सिंस दे आर अवेलेबल इन दोज मार्केट एट अ वाइड रेंज. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंसिव हैं वहां पर आपको चीप रेट्स पे अवेलेबल हो. सेम गोज विद द यूज ऑफ फॉरेन रॉ मटेरियल्स के जब आप DFIs की बात करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव योर सेटअप और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द subsidiary in another market because you are trying to get the benefit or you are trying to use the foreign raw materials. उन raw materials को use करके foreign raw materials जो आपको cheap prices पे available हैं, you can get the benefit and then you can reduce the cost and increase the revenues.
We also discussed about the use of foreign technology, where we discussed that there is a possibility that advanced technology can reduce the cost, and you want to learn the new technologies, and for that you can acquire an existing setup into a foreign market, and then you can learn the ways that how it can reduce the cost, and you can learn the new ways or the advanced ways of technology, and then you can introduce them here in your other setups also. Finally, react to the exchange rate movement. You can have your setup into a country or into a market where you are thinking at the time of establishment in that current country, the currency of that particular country will be weak, and during the time of establishment, after the establishment of your subsidiary over there in that market, there is a possibility कि उस currency में enhancement आए या strengthening हो वो currency. So in that case, जब आपने अपना setup launch किया in that country where the currency was weak, so obviously it was cheap at that time. When you have launched your setup in that particular country और उस country की currency enhance हो गई है या strengthen हो गई है, so obviously आपको gain हुआ है, उस profit हुआ है उस opportunity से या उस investment से, and you can get the benefit out of it and you can reduce the costs. So these are some common motives for the multinational companies why they go for the DFIs and why they have their setups or subsidiaries established in other countries. So in our next lecture we will discuss the further objectives or motives with examples in details for the DFIs. Till then, thank you and Allah Hafiz.